In today's session, we would be going with one more concept, that is puzzle test. Whatever you have done till now, like classification, sequence, sitting arrangement, this is also one kind. But when we talk about the what you call as the entire syllabus, when we talk about the kind of questions, the number of questions you have it from this also. So we are going towards the same, that is puzzle test. Now, let us start. What is puzzle test and what kind of questions you have? It's not a very big issue, because with this, after this, I am going to start with some of the basic concepts of maths, which will be there in your exams. Like you all know that LCM, HCF, prime numbers, based questions based on those, right? So that is why I wanted to complete this. Now, this puzzle test refers to something which is puzzled, यानी कि confusing. कुछ ऐसा जो आपको लगेगा कि what is this, क्या लिखा क्या है? It's something very baffling, which is very confusing. So you would be given with some रॉ इंफॉर्मेशन. आपको जो है ना तोड़ तोड़ के, रॉ इंफॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पर तोड़ तोड़ के आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा अबाउट द पर्सन, अबाउट द आइटम्स, और यू नीड टू अरेंज इट इनटू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर. You would be given the information like in pieces, you can say. That is why it is called as a puzzle, or that is why it is also said as confusing. तो आपको रॉ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगा एंड यू नीड टू अरेंज द सेम इन अ पर्टिकुलर sequence or order, whatever you call it. And then ये सिर्फ इतना करना काफी नहीं है. उसके बाद what you have to see, that is you will be given the jumbled information. As I said, तोड़ तोड़ के आपको information मिलेगा. तो जो तोड़ तोड़ के information मिला है, based on that you need to form, आप अपने तरीके पर, अपनी जगह पर you would be forming a diagrammatic presentation. वहां नहीं दिखाना, आपको just अपने पास रखना है. And then you can find out what is the answer. यानी कि एक आपके पास छोटी छोटी चीजें दी होंगी, जैसे हमारे वो पजल्स होते हैं ना जिनको हम जोड़ते हैं. सिमिलरली, सो यू वुड बी गिवन दोस पजल्स. वो ऐसे दिए होते हैं ना, ऐसे ऐसे पजल्स दिए होते हैं, और आपको उसे ज्वाइन करना होता. सिंपल, बस उसी चीज को उन्होंने एक वर्ड फॉर्म में दे दिया है, एक नंबर फॉर्म में दे दिया है. आपको ऐसे पजल्स दिए हुए हैं, एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास एक पिक्चर बनी हुई होती है और आपको उसे ही देखकर वो जोड़ना पड़ता है. द सेम थिंग इज दिस पजल टेस्ट. इन अनदर मैनर, अगर आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, तो सेम मैनर इज योर पजल टेस्ट. इवन वी हैव इट ऑन आवर मोबाइल्स ऑल्सो. सो दैट्स आपका पजल टेस्ट. It can be, the questions can be based on classification, which we have already done. Then it can be placing the arrangement, comparison, sequence, or family, etc. So this is where you have the puzzle test. इन अनदर वर्ड, आपको ऐसे छोटे छोटे पजल्स दिए हुए हैं, आपको एक पिक्चर बनाकर दी हुई है और आपको उसे देखकर उसको जोड़ना है. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. Here you are going to get it in the form of words, letters. तो इसीलिए it is in the. Now let us come to one question. Why I said that you need to present it in a diagrammatic manner is, जब भी आप कोई भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, इफ यू हैव द रफ पेपर एंड यू आर जस्ट एबल टू, जैसे मतलब कि स्टूडेंट्स आस्क मी द क्वेश्चंस, तो रफ पेपर में अगर आप बनाकर उसकी फोटो बनाकर कोशिश करोगे, तो इट विल कहीं ना कहीं यू विल गेट द आंसर्स.
this is the given extract, or you can say the question. 6 books are there, A, B, C, D, E, F, and सब साथ साथ में लगे हुए हैं. B, C, D, E, and F have green covers, while others have yellow. यानी कि A and D, A and D जो है उनके हमारे जो कलर्स हैं वो है येलो. राइट नाउ books A, B, and D are new, while C, E, and F are old. Sorry, our law books. Sorry, A, B, D are new, while others are old. A, B, D. तो C, E, F जो है वो आपके old है. Again, A, B, C are law books, while others are medical. तो इनमें से कौन से ओल्ड भी है, मेडिकल भी है और ग्रीन भी है? दिस यू हैव टू फाइंड आउट. So that is the question. Okay. Right. Now let us make it as a diagram. या फिर एक हम बना लेते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं. अब यहाँ पे लिखा है बी सी ई एफ हैव ग्रीन, यानी कि ए बी और डी जो है वो येलो है. ए बी और डी, सॉरी, ए डी जो है वो येलो है, बाकी चारों ग्रीन है. आई एम यूजिंग जी as a short form. Then again, A, B, and D are new. A, B, and D are new. This is old, this is old, this is old. And then again, they said A, B, C are law. A, B, C are law. And D, E, F are medical. This is the given information. So now we have to find 2 books which are old, medical, and green in cover. सॉरी, यहाँ पे हमें लिखा था मेडिकल. आई एम सॉरी, टेकिंग. Two books are old, then medical, and also green in cover. So the answer is this is how you have to present yourself. Nothing you have to do. You just need to एक आप अपने साथ में रखिए. You can just make it एक छोटा सा बना के रख सकते हैं अपने साथ में, and then ये बना दिया आपने. तो दिस इज द नंबर, दिस इज द काइंड्स ऑफ बुक्स ए बी सी डी ई एफ जो उन्होंने दिया है इंफॉर्मेशन को. अब हमने उसको साफ साफ एक उसमें डाल दिया है टेबल में. सो दिस टेबल कैन शो यू एग्जैक्टली लाइक. अब यहाँ पर 3 लॉ के थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन था मेडिकल. तो मेडिकल हमारे पास 1 2 3 है, लेकिन हमारे को चाहिए 2 बिट्स विच आर ओल्ड. तो ये न्यू है, तो दिस इज ओल्ड. एंड देन दे हैव आल्सो आस्क्ड ग्रीन इन कलर, तो ये ग्रीन इन कलर भी है. तो द आंसर इज ई एंड एफ. So this is one kind of question that you can expect, or you can say कि ऐसे questions आपके पेपर में आ सकते हैं.
This is the given information. The information says there are 5 people, A, B, C, D, E. इसके अंदर से they have given that जो E है, there is a married couple in which E is husband, यानी कि ये आपका जो है he is a man. Then B is the brother of A, यानी कि ये भी आपका he is also a man. And this means A is मतलब कि A जो है she is female, यहां दिया है A and D, यानी कि A फीमेल है एंड डी भी फीमेल है, यानी कि बी सी ई जो है वो मतलब कि मैन है. एंड इसके अंदर से ये लिखा हुआ है दैट हु इज प्रोफेसर. तो अब ए तो है नहीं क्योंकि ए एंड डी अनमैरिड है एंड ए एंड डी जो है वो कुछ नहीं करते हैं. दैट मीन्स बी सी एंड ई में से कौन है जो कि प्रोफेसर है. ओके the question is very simple actually. You can just question के अंदर the answer is there. If you see in the question itself, it is given. It's only a confusion, but if you see, it is a very clear question. Yes. Actually, the question is comprising of the answer also. That is why it is called as confusing, baffling. That's why we say it. See, कुछ भी नहीं करना था. यहाँ पर क्या लिखा हुआ? Let me come to the question, मतलब कि answer part. B is the brother of A and is neither doctor or lawyer. और इन्होंने क्वेश्चन पूछा who is professor. तो सिंपल आंसर ही B है. There is no need of analyzing the entire data. B is the brother, यानी कि B इंसान मतलब कि बॉय है एंड ही इज डॉक्टर भी नहीं है लॉयर भी नहीं है, तो नेचुरल है कि इज प्रोफेसर, क्योंकि तीनों मेल मेंबर्स जो है दे आर वर्किंग एंड जो दोनों फीमेल्स हैं दे आर अनमैरिड एंड नॉन वर्किंग. सो द सिंपल आंसर इज आपका बी. दैट्स अ सिंपल आंसर. So this is what we call as a puzzle test in another way, because it has been आपको जो डेटा दे दिया है that's looking as if कितना सारा है. अब सिंपल सा है, ए एंड डी आर फीमेल, ए एंड डी को हटा दिया, बी सी डी हमारे पास बच गया बी सी ई. उसके अंदर से उन्होंने बाकी सारी चीजें हटा दो, उसमें लिखा हुआ है कि बी जो है वो डॉक्टर भी नहीं है लॉयर भी नहीं, तो नेचुरल है कि वो प्रोफेसर है. बस दैट्स अ सिंपल आंसर. So this is what we call as the puzzle test. Right? We will do one more example and then we can move towards the next section, next session. The only thing that you all need to is sometimes the question might be having the answer, sometimes it might be कि थोड़ा सा आपको लगे, जैसे पहली बारी हमने किया था जो बुक वाला किया था उसके अंदर हमारा ये था कि थोड़ा सा समय लगता, तो कुछ भी होता है on a rough paper because you will be provided with the rough sheet, तो rough sheet के अंदर थोड़ी सी एक diagrammatic presentation कर लो. अब ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन है, दिस वाज नॉट गिवन इन दिस मैनर जैसा मैंने लिखा है, ये ऐसा नहीं था, ये मैंने प्रेजेंट किया है आप लोगों के लिए. दिस वाज अ कंप्लीट क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसको प्रेजेंट किया है. तो अब इसके अंदर से क्या था कि ए एंड डी देखो, जो इसके अंदर देखो हमने क्या किया, ए एंड डी आर अनमैरिड, तो ए एंड डी हमारा पहले ही निकल गया. तो हमारे पास बच गया बी सी एंड ई, यानी कि एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर और एक लॉयर है, और उन्होंने बोला है कि जो मतलब बी है वो डॉक्टर और लॉयर नहीं है तो वो प्रोफेसर है. बस क्वेश्चन ही इतना ही था. तो दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर माइंड उतना ही रखना बस. द लास्ट मतलब वी व्हाट वी वुड डू इज
You don't even need the option for this answer. Even अगर मैं options ना भी दूंगी ना, तो भी this question can be easily solved. See, you need to only see. अब आप, हम लोग बीएसटी के अंदर एक वो चीज बताती थी ना मैं आपको, ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एंड देन गो फॉर द फैक्ट. सो यहाँ पर वही चीज है. सी द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन सेज इज आफ्टर टेकिंग फ्रूट्स बी एंड सी फेल सिक. यानी कि दिस मीन्स यहाँ क्वेश्चन हमें बताना ही नहीं है, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज क्लियर कि इन दोनों ने कोई ऐसी चीज जो कॉमन खाई थी. और अगर आप बाकी सारे, अब अगर हम फैक्ट्स पर पहुंचते तो हम देखते हैं कि ए ने ग्रेप्स और पाइनएप्पल खाए थे, डी ने ग्रेप्स एप्पल एंड पाइनएप्पल खाए थे, लेकिन बी ही ऐसा था जिन्होंने, मतलब कि जिन दो बी और सी ही ऐसे थे जिन्होंने कॉमन में खाया है आपका ऑरेंज. दोनों ने ऑरेंज खाया है, बाकी तीनों ने ऑरेंज, बाकी दोनों ने ऑरेंज नहीं खाया है. ना ए ने ऑरेंज खाया ना डी ने ऑरेंज खाया है. ए बी एंड डी तीनों ने ग्रेप्स खाए हैं. ए सी एंड डी ने दो, मतलब कि एप्पल खाए हैं. लेकिन बी और सी जो बीमार पड़े हैं उन दोनों ने ऐसी कौन सी चीज कॉमन में खाई थी? ऑरेंजेस. तो द आंसर इज ऑरेंज. यू डिड नॉट इवन नीड टू गो टू द, आप ऐसा उल्टा मत पढ़ना. स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन में दिया है बी एंड सी फिल, तो आपको सबसे पहले यहीं पे अपने आप ही आ गया कि बी एंड सी ने कॉमन चीज क्या खाई थी. एंड नाउ इफ यू लुक इनटू द फिगर्स, तो बी ने ग्रेप्स एंड ऑरेंज खाया है, लेकिन सी ने ग्रेप्स नहीं खाया है, लेकिन सी ने भी ऑरेंज खाया है. तो द आंसर इज ऑरेंज. बस आपको ए एंड डी वाला तक तो पहुंचना ही नहीं था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो बी एंड सी से रिलेटेड है. तो दिस इज हाउ, एंड इन फैक्ट इट इज वेरी वेरी फनी टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. नॉट ओनली फनी, इट मतलब कि इट्स वेरी माइंड बॉगलिंग ऑल्सो, जबकि थोड़ी सी हंसी आती है. टेक द सेम फॉर्मूला व्हाट वी यूज टू हैव इन अवर केस स्टडीज. हम लोग जो केस स्टडीज के अंदर करते थे इन बिजनेस स्टडीज, द सेम थिंग. फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस. The why I am telling you this CUET batch, because here you are not going to have the time. हमारा जो टाइम लिमिट है, अभी आप लोग पेपर तो दे ही रहे हो इंग्लिश वगैरह के साथ साथ में, तो यू कैन सी दैट द टाइम लिमिट इज 45 मिनट्स. सो 45 मिनट्स में हमें 40 क्वेश्चंस करने, तो यानी कि हमारा 1 मिनट ही रहना चाहिए. सो 1 मिनट में हमें एनालाइज करना द एंटायर 1 minute each for each question. So that means we have only 1 minute. तो first read the question जो आपका दिया हुआ एंड में, और उसको रीड करके देन एनालाइज द डाटा. पूरा डाटा पढ़कर क्वेश्चन पे पहुंचोगे तो आपका दिमाग पूरा सचमुच में वो कंफ्यूज होगा. सो दैट्स अ टिप, और यू कैन से ट्रिक टू सॉल्व सच क्वेश्चंस.